अभिव्यक्ति 2024 आर्मी वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन का लिटरेरी फेस्टिवल की शुरुआत आज चंडी मंदिर में हो गई है। यह फेस्टिवल 8 नवंबर से लेकर 10 नवंबर तक चलेगा। इसके मुख्य आकर्षण रहे बोमन ईरानी जी। आओ देखते हैं एक रिपोर्ट। My favorite actor. My all-time favorite actor. Well, he wouldn't stop. And I'm sitting over there looking down. I was looking at my shoelaces. I didn't know what to do with myself. Saying, my सबसे favorite. I was telling the guy on the phone, मेरा सबसे favorite actor, मेरा सबसे favorite actor, मैं बात करवाता हूँ. I said, मुझे बात नहीं करनी है तुम्हारे दोस्त के साथ. And he looked at me and he froze. And words stopped coming out of his mouth. Finally, he came all the way up to me. He bent down low and he whispered in my ear for the whole aircraft to hear. And he said, "अरे भाई साहब, लेकिन आपका नाम क्या है?" From that day on, ladies and gentlemen, I never assume anything. Yeah. My name is Boman Irani and I'm an actor. So beautiful to be here. Just making sure. The book Ali by Miss Meenu Tripathi. We have the books on the stall for all you to puzzle later. Thank you so much. And our Western Command to please felicitate Mrs. Sunita Dwivedi, President Ava, for her gracious presence. Thank you so much, ma'am, for being here with us. Poetry is the language at its most distilled. You can find poetry in your everyday life, which you're going to relate to your everyday life. Colonel Iqbal. Your phone number, give it to Jack. He'll send you a notification. Next. Come, beta, come. Please come. Get us some beta. We'll do it. अच्छा मोहन को पसीने आ गए आज. थोड़ा गैप दो. रुको यारो. भाई अब जोड़ दो. सेल्फी वाले. पीछे वाला भाई सेल्फी हट जा. So it's very much return to roots. I'm living in Bangalore and I'm finding कि मेरे को राजस्थान की बहुत याद आ रही है. So sitting there, that's a new work. It's kind of a very exciting new genre for me, but it will be funny and it will be romantic. So you grew up as an army kid, I believe, and you were in Meerut. So Yes. Can you tell us something about from your childhood, which is still with you, some memory from there? Yeah. So my father was in the army. In fact, his last posting was in Chandigarh. And we were army life में तो बहुत बढ़िया libraries होते हैं. So we used to read a lot. And my nani was a great storyteller. So in Meerut she would tell stories. We would all listen. तब तो there was no TV, nothing. Nani was TV. Nani was books. Everything was from her. So I think हमारी family में people like to tell stories. You know, there's a real culture of addabazi or just sitting and chatting or double bed pe matri chai leke. People are just telling stories and gossiping and chatting. So I love that whole culture and I try to capture that in my books. Yeah, I can see that. Yeah. So that was the time you. When did you decide that you will be writing about it? You were in advertising before that. Yeah, so I was in advertising for 17 years and I worked on junk food my whole life. You know, nowadays it's very bad to say, but I was selling chocolates, chips and colas, you know. So, but it was great because I worked with very good filmmakers, very good movie actors. I did campaigns like Ye Dil Mange More for Pepsi and Dar Ke Aage Seeds Hai for Mountain Dew and Tera Hai Par Mera Hai for Kurkure.
So I did a lot of that, but advertising में क्या होता है कि you can't tell your own story, you're telling the brand का story. And फिर वो frustration होने लगा कि मैं I should tell my own story. You know that ठीक है, but अब कुरकुरे में राजमा डाल दिया, या अब पेप्सी का 300 ml का bottle आ गया. You know, I mean, there's just that much you can say. Even though you may have a big movie, you may have Shah Rukh Khan saying it, but what is he saying? He's saying now Pepsi 300 ml. So I wanted to say something more meaningful and more long format without the restrictions of advertising. One last thing. How did you feel when Vikram Batra used Ye Dil Mange More? So honored, so honored. It was amazing. And you know, when he used it, we didn't know what was going to happen to him. We were just excited when the interview came out, and then subsequently, you know, I mean, the sacrifice he made and just the whole thing, it was just, you felt so sad, but it was a great honor, you know. Hello, sir. Hello. Can we begin with the talk of today? Eva. Well, today I think it was overwhelming, as you may have felt that way. It was so beautiful to see so many people come out to our chambers and supporting the digital arts. And there were 16 releases, book releases today. And all the authors are women, are of power, and the armed forces have the opportunity to tell their story. Everybody has to tell a story. At the end of the day, it's right to keep a private diary of the publisher. And this is an opportunity to publish. And not only just published and put out there on some obscure standard, published and released on such a amazing level. Thank Congratulations on the Beta Gold, winning the best film and director and the actors. Who are we giving credit to, the actor or the director and you? Look, I'll take the credit. No, I'll take the credit for one thing, and I say this line very often. I take the credit for casting the right team. That includes the actors, the assistant director, the associate director, the cinematographer, the music director, the writer. That credit I'll take care of. The rest, everybody else takes. I take the credit for picking on a team that gave their heart and soul to a movie that means so much to me and then meant so much to them. So for me, taking credit is not the nicest thing. Collective credit, even when you said you won Best Actor, I said correct. We won Best Actor. We won Best Actor. We won Best Film. We won Best Film. We won Best Actor. And let's see how it goes EP in Goa. We're looking forward to it. I think इसलिए कि मैंने अस्थाना का रोल किया है, पुराना का रोल किया है, लोग समझ रहे हैं पंजाबी बहुत फ्लुएंटली बोलते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा आपको कैसे कम्युनिकेट करें. So thank you very much. आपका happy scene? Happy scene. So nice. What a happy name. Good to be here. बहुत अच्छा लगा आज का और इतना enthusiasm मुझे I find it very, very inspiring. इतने लोग not only enthusiastic, not just the writers, not just the publishers, उन लोग उनका अपना काम करते रहेंगे, but the supporters. Main चीज़ ना, you can do what you want. कितनी भी आप मेहनत करो, कितना भी लिखो, अंधेरे कमरे में बैठ के लिखो, सोचेंगे कि एक दिन हमारा बुक पब्लिश होगा, पब्लिश भी हो गया, पब्लिशर भी मिला, लेकिन सपोर्टर अगर नहीं रहेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं. तो आज the way people have supported the young ladies who have written their books, और आज 16 novels और books का inauguration हो रहा है, बहुत बड़ी बात और खुशी की बात है. The whole brass, top brass personnel and their wives, especially the wives, who are here to present this success. बहुत खुशी की बात है. सर आप जब फिल्म सेट पे बिजी होते हो तो बुक्स को कितना टाइम दो, कौन सा एप्लीकेशन आप बुक्स पढ़ते हैं या फ्री टाइम होती है पसंद करते हैं? अनफॉर्चुनेटली मैं सेट पे सिर्फ एक ही बुक पढ़ता हूँ, एक कौन सा? स्क्रीन पे जिसकी एक्टिंग करता हूँ, बिकॉज मैं अलग घर डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ और कहीं और चले जाऊँ तो मैं कैरेक्टर से दूर हो जाता हूँ. तो मैं सीन्स पढ़ते रहता हूँ. दूसरे सीन जिसमें मैं नहीं हूँ वो भी बहुत महत्वपूर्ण है. जो सीन में आप नहीं है उसका मतलब नहीं है कि आप नहीं है तो उसका कोई मीनिंग नहीं है आपके रोल में.
वहाँ पे भी आपको आपका कैरेक्टर के बारे में कुछ पता चलता है। किसी ने कोई कैरेक्टर, फलानी कैरेक्टर ने मेरे बारे में कुछ जिक्र किया हो, वो ध्यान रखना चाहिए। So you should not only know your line, you should know whatever happens. So I read basically one book on the set, and that is a script. Okay. So शौक था, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये जो गाना है हमारी फिल्म में बहुत ही ब्यूटीफुली पिक्चराइज की है। अली फजल एक्टर ने पहला रोल शायद किया, हाँ पहला आज वो इंटरनेशनल स्टार हो गया है। लेकिन इट एंड्स इन ट्रेजेडी। आई ऑलवेज लाइक टू कन्वर्ट एनीथिंग दैट इज जो सैड होता है उसमें होप डालने की मैं कोशिश करता हूँ। तो वो जो गाना का जो इंटरप्रिटेशन है इज अ हैप्पी इंटरप्रिटेशन, इट्स नॉट अ सैड इंटरप्रिटेशन। तो जब हम गाते हैं तो ऐसा लगता है कि यार ये गाने में कोई पॉजिटिव थिंकिंग है, कोई पॉजिटिविटी है, हैप्पीनेस है, सबको एक साथ हाथ पकड़ के आगे बढ़ो वाला गाना है। इट जस्ट फील्स लाइक एन एंथम ऑफ हैप्पीनेस, जो असल में वो एक एंथम ऑफ सैडनेस है। वो बोल रहा है कि मुझे गिव मी सम सनशाइन यार, lift your spirits and move ahead. That is what my philosophy. So the song, the version that we do, what I do with the guitar, is a happy version. मुझे कुछ सवाल करते मुझे समझ मैंने कुछ किया नहीं 3 days में जाके मैंने वो राजू हिरानी जवाब दे पाएगा। लेकिन आई एम नॉट श्योर। जो मैं बातें करते रहता हूँ राजू के साथ, सॉरी राजकुमार हिरानी साहब के साथ, और मेरे दोस्त है, लेकिन ही टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री ही इज एन आइकॉन। अभी तो कोई बात ही नहीं है उसके बारे में, आप ही लोग बात करते हैं, आप ही लोग। लेकिन आपका मन करता है कि पार्ट 2 बने? आई एम नॉट अ फैन ऑफ पार्ट 2। हाँ, जो हो गया अभी आगे बढ़ो। आई एम नॉट अ फैन। फिर एक गॉडफादर पार्ट 2 बहुत अच्छी बनी, बाकी के पार्ट 2 सब ठीक ओके लगे लोग, मुन्ना भाई बहुत अच्छी पार्ट 2। नमस्कार, मेरा नाम अमीश त्रिपाठी है। मैंने 11 पुस्तकें लिखी हैं, तो पूरी सूची सुनाऊं तो थोड़ा लंबा लग जाएगा आपको। शिवा त्रय है, इमॉर्टल्स ऑफ मेलुआ, सीक्रेट ऑफ द नागा, लोथ ऑफ द वायुपुत्रस, रामचंद्र सीरीज, राम साइन ऑफ इक्ष्वाकु, सीता वॉरियर ऑफ मिथिला, रावण एनिमी ऑफ आर्यवर्ता और वॉर ऑफ लंका। तो ये 7 पुस्तकें हो गई मेरी मेन पुस्तकें। एक और फिक्शन है लेजेंड ऑफ सुहेल देव, और 3 नॉन फिक्शन भी हैं, धर्मा, आइडल्स एंड इमॉर्टल इंडिया। हमारी जो देवी देवताओं, हमारे इतिहास, हमारे पुराण पे ऊपर जो कहानियाँ हैं, इसकी डिमांड तो हरदम भारत में कांस्य युग से मात्र हम ही एक सभ्यता हैं, कल्चर हैं जो आज भी जिंदा है। मैं शिवपंथी हूँ। रोज़ सुबह मैं महामृत्युंजय जप करता हूँ। हम लोग रुद्राश्रम करते हैं। जो वैष्णव हैं यहाँ पे वो श्री वैष्णव करते हैं। ये तो 8000 10,000 साल पहले इसकी रचना की गई थी, लेकिन आज भी हम कर रहे हैं। तो डिमांड हरदम रहा है। लेकिन जो आर्ट्स के जगत में कुछ इंडस्ट्रीज थे जिन्होंने सप्लाई नहीं किया, तो कुछ इंडस्ट्रीज थे जिन्होंने सप्लाई किया। देखिए टीवी में हरदम इस विषय पर बहुत सीरियल्स आते थे जी, और जो प्रचलित हुई और बहुत सक्सेसफुल हुई। हिंदी प्रकाशक बहुत निकलते हैं। नॉर्थ में आप देखेंगे महासमर, जो नरेंद्र कोहली जी की जो है, मराठी में मृत्युंजय शिवाजी सावंत की। लेकिन हाँ, हिंदी मूवी इंडस्ट्री और अंग्रेजी प्रकाशन जी, इस जगत में फॉर सम रीज़न यहाँ पे इस विषय पर वो लोग ना चित्रपट निकालते थे ना पुस्तकें निकालते थे। डिमांड तो था, सप्लाई नहीं था। जैसे ही सप्लाई आया वो देख रहे हैं कि भाई डिमांड तो पहले से ही था। तो हम थोड़ा लेट हो गए। हाँ, ये थोड़ा लेट हो गए, लेकिन कई दूसरे थे जो लेट नहीं हुए। आप तेलुगु तमिल इंडस्ट्री तेलुगु में तो स्पेशली तेलुगु मूवीज में एनटीआर के ज़माने से राइट यही तो सब्जेक्ट्स थे जिसके ऊपर मूवीज बनते थे। अच्छा, एक चीज़ और देखता हूँ मैं, खासकर हमारे इंडिया में, आई डोंट नो व्हाई, बट फॉरेन राइटर्स के लेकर उनके लिए काफ़ी ज़्यादा प्यार रहता है। आप एक नए निकल के आए हैं इंडियन राइटर, जिसके लिए काफ़ी प्यार आया है इंडियन ऑडियंस में खास करके। आपको ऐसा क्या लगा कि मैंने कुछ ऐसा खास किया कि मेरे लिए प्यार आ गया, फाइनली एक इंडियन राइटर के लिए प्यार आया? अभी एक तो आप झूठ बड़े अच्छे से बोल देते हैं, आपको सेल्स में होना चाहिए है। मैं 50 साल का हूँ, आप मुझे बोल रहे हैं यंग ऑथर। अरे सर, मेरे को तो पता भी नहीं था 50 साल के आप यंग तो हैं। आपकी राइटिंग, मैं 15 साल से मैं लेखन कर रहा हूँ। एंड सब जो पाठक हैं, जो भारत की जो युवा पीढ़ी है, उनके लिए बहुत बहुत
आभार कि उन्होंने मुझे इतना प्रेम दिया, जी। मेरी पुस्तकों को खरीदा। और क्या कह सकता हूँ, शिव जी का आशीर्वाद है। और नहीं, लेकिन मेरी क्वेश्चन ये है कि फॉरेन राइटर्स के लेकर ना उनकी एडमिरेशन बहुत रहती है कि मैं इसकी बुक पढ़ रहा हूँ, उसकी बुक पढ़ रहा हूँ, कभी इतना नहीं कह पाते कि एक इंडियन राइटर की बुक पढ़ रहा हूँ मैं। देखिए ये मैं कहूँगा कि रामधारी दिनकर की भी अगर किताब किसी को पढ़नी हो, खास करके अर्बन में, यार, एक तो आपने रामधारी दिनकर की पुस्तकें पढ़ी है भाई, मैं इम्प्रेस हो गया। देखिए ये ऐसा है, मैं ना पश्चिमी विरोधी हूँ ना पश्चिमी उपासक हूँ, ठीक है। कुछ अच्छी चीज़ें हैं पश्चिमी से, क्यों ना सीखें, ठीक है। लेकिन देखिए महात्मा गांधी ने भी कहा था कि दुनिया भर की जो अच्छी चीज़ें हैं हम अपने घर के खिड़की खुले रखेंगे, दुनिया भर की जो अच्छी चीज़ें हैं हाँ हवा आए और हम सीखेंगे उसे, लेकिन मेरी जड़ें भारत में ही रहेंगी। कम से कम ये तो होना चाहिए। देखिए पश्चिम, चीन, जहाँ से भी अच्छी बातें हैं सीखिए ना। सरस्वती माँ किसी को भी आशीर्वाद दे सकती है, सिर्फ भारतीय को तो ही देंगे, ठीक है। लेकिन जड़ें भारत में होनी चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है। एंड सर एक एंड में और चीज़ पूछना चाहूँगा आपसे मैं कि जैसे बहुत सारे राइटर्स जो होते हैं, कई बार ना एक नई चीज़ आ गई है, कोई भी राइटिंग कर रहे हो, एडवर्टाइजमेंट कहीं भी, क्रिएटिव ब्लॉक, ये वाकई में कोई चीज़ है या ये सिर्फ मिथ है? यार मुझे तो कभी नहीं हुआ था, बस एक बार हुआ था। नहीं तो यार मैंने 15 साल में 11 पुस्तकें रिलीज़ की हैं। मेरी पुस्तकें थोड़ी लॉन्ग रहती हैं जी। लोगों को फॉर्चुनेटली पसंद आती हैं, लेकिन लॉन्ग रहती हैं, छोटी पुस्तकें नहीं। मुझे बस एक बार एक क्रिएटिव ब्लॉक हुआ था, जो मतलब मेरी ज़ाती ज़िंदगी में बहुत ही एक कठिनाई का समय था। मेरी पारिवारिक ज़िंदगी में मेरे जीजा जी, जिनको मैं पिता समान देखता था, उनकी बहुत दुखद मौत हो गई। फिर मेरे पिताजी भी चल बसे। उसके बाद ये 5-6 साल बहुत ही बुरे गए। तो उस समय में जब मेरा एकदम पूरा एक तरह से डिप्रेशन में था, तो वो 2-3 महीने के लिए कुछ दिनों के लिए ब्लॉक हो गया था। मतलब मैं लैपटॉप खोलता था, कुछ आता नहीं था। बस वही एक समय था, नहीं तो कभी नहीं हुआ। शिव जी का आशीर्वाद है। ग्रेट सर। आंसर, आप शिव जी को मानते हैं, मैं भी बहुत मानता हूँ, लेकिन यंगस्टर्स हैं वो भी मानते हैं, लेकिन कुछ है गलत तरीके से मानते हैं। वो कहते हैं कि भांग पीने से आप शिव जी के पास चले जाते हैं, क्योंकि आप शिव जी के बारे में बहुत लिखते हैं, आपकी जो बुक्स हैं बहुत ज़्यादा यूथ के बीच में पॉपुलर हैं। क्या वाकई में ये चीज़ है, ये चीज़ अपने आप बनाई हुई है? देखिए मैं कहूँगा शिव जी आदि योगी हैं। अगर आपको उनसे कुछ सीखना है तो योग सीखिए। शिव जी अपने पत्नी से बेइंतहा प्यार करते हैं। अगर आपको शिव जी से कुछ सीखना है वो सीखिए। और शिव जी के पथ पर चलना है तो पहले शिव जी की तरह थोड़ा बन के तो दिखाइए, कि उतना दम हो, उतना ज्ञान हो, तब देखेंगे। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। मेरा नाम मीरू त्रिपाठी है और आज आले शीर्षक से मेरी एक किताब का विमोचन हुआ है आबा के द्वारा। और आले कहानी संग्रह में 10 कहानियाँ हैं। ये 10 कहानियाँ काफ़ी लंबी हैं और फुर्सत में लिखी गई हैं कहानियाँ। तो यकीनन मेरा विश्वास है कि ये कहानियाँ जो हैं पाठकों के मन मस्तिष्क में अपना प्रभाव बनाएंगी। चाहूँगी तो मैं ये कि स्थायी प्रवास उसमें बनाएं। इस बुक में जो आपने कहानियाँ लिखी हैं, उनमें से किसी एक कहानी के बारे में जो आपको बहुत पसंद है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। आले जो शीर्षक है वो मैंने एक्चुअली लिया है गाँव में जैसे दीवारों पे आले बनते थे, तो अब उन आलों को बनाने की रवायत नहीं रह गई है, लेकिन फिर भी मन के आले आज भी मिलते हैं। तो इस कहानियों के जो किरदार हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी मुकाम पर इन मन के आलों को ढूंढते हैं और इसमें अपना अतीत, भविष्य, वर्तमान, अपनी उलझन सब कुछ इसमें रखते हैं। जैसे इस कहानी में कहानी संग्रह में एक कहानी है चिट्ठी, जो मेरी बहुत ही मनपसंद कहानी है। इस कहानी की जो मुख्य किरदार है वो एक पुरानी चिट्ठी, वो चिट्ठी उसके पास पहुंचती है जिसने खुद लिखी है। किसी कारणवश वो कहीं पे ठहरी रह गई और जब वो पहुंचती है तो इतना झकझोरती है उसे और रात भर में उसका जो विवेक है उसे जगा देती है। तो कहानी संग्रह की जितनी भी कहानियां हैं उनके किरदार जो है वो किसी न किसी मुकाम पे एक किस्सा गोई करते हैं या फिर अपने अतीत वर्तमान को हमारे सामने रखते हैं। इनके किरदारों में खाली पुत्र, पिता, भाई बहन, पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका ही नहीं है। इसके अलावा इस कहानी संग्रह में एक कहानी है कदरदान, जिसमें कुछ बर्तन किरदार हैं
और उन बर्तनों को जो है नॉन लिविंग थिंग्स है लेकिन इनको बिल्कुल ह्यूमन की तरह दिखाया है। पुरानी रसोई में जो पुराने बर्तन पाए जाते थे, वो बर्तन जब सालों बाद भंडार गृह से निकलते हैं तो फिर उन पर क्या आप बीती वो अपनी सुनाते, वो अपने अतीत के वैभव का वर्णन करते हैं, वो अपने वर्तमान की दशा से दुखी हैं और भविष्य के लिए चिंतित है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है कदरदान की उन बर्तनों का आखिर में क्या हुआ होगा। इसी तरह नॉन लिविंग थिंग्स में अगर हम देखें तो एक कहानी है कंबल। उसमें एक कंबल है, बड़ा चुगलखोर है। वो जो है पति पत्नी जो रूठे हुए हैं एक दूसरे से, तो उनको आगाह करता है कि ये जो तुमने अपने अहम का बेताल अपने कांधे पे टांगा है, इसको अगर उतारोगे तो देख पाओगे कि तुम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हो। चिट्ठी के बारे में मैंने बताया ही है कि एक चिट्ठी जो है वो एक पुत्र को कैसे रात भर में झकझोरती है कि जो कमिटमेंट उसने अपने पिता से किए थे वो वक्त के दरिया में वो किसी तरह से भूल गया। मैडम आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं लखनऊ से बिलोंग करती हूँ। ये लखनऊ का जो कल्चर है वो भी इसमें आपने बुक्स में डाला? हाँ, अब मेरे लेखन में कुछ ना कुछ तो ऐसा आएगा ही उत्तर क्योंकि प्रदेश का या लखनऊ के खाने बहुत प्रसिद्ध हैं बिल्कुल। और उनके वो कपड़ा जो लखनवी चिकन बिल्कुल, वगैरह बिल्कुल, है बिल्कुल बिल्कुल तो बहुत प्रसिद्ध है। और इसमें जो है एक सल भरी साड़ी भी है। उसमें एक साड़ी है जो कि जिसपे सल पड़े हुए हैं। अब वो सल किस तरह से अतीत में ले जाते हैं, एक टीचर की कहानी है जो कि अगर मैं कहानी का एंड बता दूंगी तो थोड़ा उत्सुकता ख़त्म हो जाएगी, लेकिन उसमें ये है कि उसकी साड़ी में सलवटें हैं, तो वो सलवटें किस तरह से अतीत को खोलती हैं उसका बहुत अच्छा वर्णन है। एक मेरी पसंदीदा कहानी है शादी का कार्ड। शादी का कार्ड दो सहेलियों को जो है किस तरह से एक दूसरे के पास लाता है। और चंडीगढ़ न्यूज़ हब में बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।